श्रीगणेशाय नमः। ओं श्री सरस्वत्यै नमः। ओं श्री गुरुभ्यो नमः। ओं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ओं सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। ओं भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिः। ओम शांति शांति शांति। प्रज्ञप्ते सनिमित्तत्वम् इष्यते युक्तिदर्शनात्। निमित्तस्यानिमित्तत्वम् इष्यते भूतदर्शनात्। Now, atra uchyate, meaning Bhashyakar clarifies. So, Vijnanavadi speaks to Bhagyarthavad. इनका अपना whatever the logic is there, reasoning is there, yukti is there, he says. Now we saw certain things, up to some extent we saw. What we saw yesterday? That you see, bhadam evam prajnaptehe sanimittattvam daya sanklesha upalabdhi yukti darshanad ishyate tvaya. Now see, it is true that in according to the logic of experience, sanklesha of duality and plane, because of samklesha and also yukti darshanat sanimittattvam, showing that the external objects is the cause for gaining the knowledge of the external objects. So what is the karana in jnana prapti? Bhahya vastu. So in these two logics, what you have pointed out by you, that there is an external object for knowledge, and that is one reason, yukti. Second yukti is there is a pain, sanklesha also is there. Therefore, your logic is that external objects are real. See? Tvaya. Now, stiri bhava tavatvam yukti darshanam vastunaha tathatva abhyupagame karanam iti atra. Now, the Purvapakshi, the Siddhanta here, Vijnanavadi says, okay, now hold on to your logic now. Don't change your stand. Stiri bhava. The yukti what you have used, hold on to it. No, don't change your stand. I will prove that your yukti is wrong. But badalna nahi. So then don't change now. So therefore, here he says that stri bhava. Stri bhava means hold on there. Vastunaha tavatva abhyupagame. So therefore, tavatva abhyupagame karanam iti atra. Now whatever you said that karanam in gaining the knowledge, the external objects are there, they are real. So what is happening now? You hold on to that logic what you have been holding on to, that there is external object, and because of the presence of external object, the knowledge is taking place. And what is the other yukti you have showed? Without the external objects, the knowledge of the particular object cannot take place. And second yukti what you gave is that the knowledge, the objects are real, therefore the pain is also real. Sanklesha is there, therefore the objects are real. Pain is there, therefore the objects are real. These two yuktis you have pointed out. Now hold on to it. Don't change your stand. Now that means what?
ब्रूहि कम किम तत इति, नो सो व्हाट. तो द भाष्यार्थवादी सेज, मैंने क्या गलती किया? I was holding on to this yukti because of this very clearly seen, this logic. So that means what? That, see, what is happening is that you have differentiated between patagnyana and ghatagnyana, etc., etc., and you think that the objects are different from each other. Objects are real, objects are externally present, and because the objects are externally present, they are real and different from each other. Knowledge that is taking place is also real. And therefore, the presence of the reality of the external objects that are present outside is the cause in gaining the knowledge. And what is another praman? Klesha is there, therefore it is true. No. When Acharya says, hold on to your logic, don't change your stand, Bruhi kim tat iti, to kya hua? I am not changing my stand. I will hold on to that particular siddhanta, these two logic. Now that means what? See, Vijnanavadi says, you please don't change, because siddhanta, hetu, drishtanta, all these things are required in proving a particular thing. सिद्धांत को प्रतिपादन किया, फिर सिद्धांत के बाद फिर इसका हेतु देना चाहिए, उसके लिए फिर दृष्टांत भी देनी चाहिए. तो ये सब तरीके के तुम प्रूव करना चाहिए. जैसे उच्चते मीन देयर इट इज सेड. नाउ वी आर आंसरिंग दैट विज्ञानवादी सेज टू बाह्यार्थवादी. उच्चते निमित्तस्य प्रज्ञप्ति आलंबना अभिमतस्य घटादेहे अनिमित्तत्वम अनालंबनत्वम वैचित्र्य अहेतुत्वम इष्यते अस्माभिः. नाउ व्हाट इज एक्साक्टली सेड नाउ? अस्माभिः इष्यते. व्हाट वी आर टेलिंग यू नाउ इज आंसर इज गिवन. What is hurled by us is that the cause is what? A jar you take, pata you take, ghata you take, or anything you take, that what you say, because of that experience is there, and therefore that vastu is becoming the karana, cause in gaining the knowledge of the vastu, uska hum nahi mante. Nimittasya pragnapti alambana abhimatasya घटादेहे अनिमित्तत्वम अनालंबनत्वम वैचित्र अहेतुत्वम इष्यते अस्माभिः. बाय अस वी डोंट एग्री. जिसको आप क्या कहे, आप कहते हैं कि वस्तु सच है और वस्तु के कारण ही ज्ञान हो रहा है ना. आप जिसको कारण मानते हैं, ज्ञान का कारण, हम उसको कारण को नहीं मानते, क्योंकि उसका अस्तित्व ही क्वेश्चन मार्क है. तो अनिमित्तत्वम अनालंबनत्वम हम मानते ही नहीं. इट इज नॉट द बेसिस, इट इज नॉट द कॉज, इट इज नॉट अनिमित्तत्वम, इट इज नॉट द कॉज, इट इज नॉट अनालंबनत्वम, इट इज नॉट द सपोर्ट, इट इज नॉट द वेराइटी, वैचित्र्य, कुछ भी नहीं है. आप उसी को मानकर कहते हैं कि ज्ञान की प्राप्ति में ये कारण है. क्या कारण है? वस्तु कारण है. तो हम जिस वस्तु को आप दिखाकर घट को दिखा दिया, पॉट को दिखा दिया, घट को, बोलते हैं कि आपका क्या मत है? घट है, और इसीलिए घट है, इसीलिए घट का ज्ञान में घट कारण बना. हाँ, तो माने आपने क्या किया? तीन चीज मान ली. क्या है? अनिमित्तत्वम, घट है कारण ज्ञान का. घट ज्ञान का कारण क्या है? घट ज्ञान का कारण घट है. ये आपका सिद्धांत है. क्यों भैया? बिना घट ज्ञान नहीं होगा. अच्छा, ये पहले हो गया अनिमित्त तत्व. हम तो अनिमित्त तत्व मानते हैं, इसको निमित्त नहीं मानते. आप निमित्त मानते हैं. और अनालंबनत्वम दी बेसिस, हम उसको आलंबन नहीं मानते. ज्ञान का, घट ज्ञान में घट ही आलंबन है. आपका सिद्धांत. हमारा सिद्धांत क्या है? घट ज्ञान का आलंबन, सपोर्ट, बेसिस, ये घट होना ये जरूरी नहीं है. ये जरूरी नहीं है. ज्ञान इसके ऊपर आधार नहीं है. इसका आधार माने ज्ञान का आधार घट नहीं है. घट ज्ञान का आधार घट नहीं है. हम उसको आलंबन नहीं मानते, आप मानते हैं. तो हमारा क्या है? अनिमित्तत्वम अनालंबनत्वम वैचित्र्य अहेतुकम इष्यते अस्माभिः.
वैचित्र्य, आप बोलते वैरायटी, देखिए अनेक ज्ञान हो रहा है, इसका मतलब बाह्य वस्तु अनेक है, एक दूसरे से, एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग है, ये अलग अलग है, अलग अलग आपन है बाहर में, इसीलिए अलग अलग ज्ञान हो रहा है। आप इसको मानते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं करते। देखिए विज्ञानवाद जैसे, दैट मीन्स व्हाट, अब इसका क्या है, बहुत सारे उदाहरण है। तो बोलते हैं कि आप एक भ्रम ले लो, पहला आपने क्या मान लिया, घट अलग है पट अलग है, घट पट से अलग, पट अलग, ये सब एक्चुअली आप परमार्थ दृष्टि आचार्य भाषा में आते हैं बाद में। तो इसीलिए आपके जो सिद्धांत है हम उसको हम स्वीकार नहीं करते। देखिए समझ में आया, पहले बाह्यार्थवाद ऐसा कहते हैं, विज्ञानवाद ऐसे कहते हैं, हम उसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, अभी देते हैं, प्रमाण देते हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बाहर का नॉलेज, नॉलेज में भेद है, ये बाह्यार्थ का सिद्धांत है। विज्ञानवाद बोलते हैं कि ज्ञान का जो भी ज्ञान है बाहर वस्तु का के ऊपर आधार नहीं है ज्ञान। हाँ हाँ, बहुत दूर है जो भी ज्ञान है। अब प्रमाण देते, उसको उदाहरण देते हैं, ठीक है। अब आप सब्जेक्टिव नॉलेज कह रहे हैं, इसका मतलब आप ऑब्जेक्टिव नॉलेज को मान रहे हैं। वेदांत कहते हैं सब्जेक्ट है ना ऑब्जेक्ट है ये बाद में आएगा। तो पहला देखिए, पहला जो सिद्धांत गलत है उसको भी पहले समझना चाहिए। समझने के बाद उसको खंडन, तो हम उसको नहीं मानते। तो फिर पूर्व पक्षी बोलते हैं कथम, आप क्यों नहीं मानते? भूत दर्शनात्, देखिए निमित्तस्य अनिमित्तत्वम इष्यते, आप जिसको निमित्त बनाया हम उसको अनिमित्त मानते हैं। क्यों भाई? कथम? भूत दर्शनात्, श्लोक में है ना भूत दर्शनात्। किस लिए? भूत दर्शनात्। भूत दर्शनात् आचार्य से परमार्थ दर्शनात् इति एतत्। भूत दर्शन माने यहाँ पे परमार्थ दर्शनात्, माने फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ रियलिटी, अल्टीमेट रियलिटी। देखिए परमार्थ दर्शनात् इति एतत्। नहीं घटः यथाभूतं रुद्रूप दर्शने सति तद् व्यतिरेकेण अस्ति, यथा अश्वान् महिषः। पटो वा तंतु व्यतिरेकेण तंतवस्य अंश व्यतिरेकेण इति एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शने आशब्द प्रत्यय निरोधात् नैव निमित्तमुपलभमाः इत्यर्थः। अब इसको हिंदी में पढ़ना नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए अभी क्या है, भूत दर्शनात्। भूत दर्शनात् माने परमार्थ दर्शनात् इति एतत्, माने परमार्थ पारमार्थ दृष्टि से, माने परमात्मा वहां तक तो जाने कोई जरूरी नहीं है, ऊपर तक, सिर्फ फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ रियलिटी। दैट मीन्स व्हाट? अल्टीमेट रियलिटी। परमार्थ दर्शनात् इति एतत्। नहीं घटः यथाभूत मुद्रूप दर्शने सति तद व्यतिरेकेण अस्ति। देखिए आप जिसको घट घट कह रहे हैं, इज इट घट? आप जिसको घटाकार को घट कहते हैं, एक्चुअली इज इट डिफरेंट फ्रॉम द मड? आप देखो, आप बोलते घट ज्ञान हुआ, एक्चुअली घट का रूप क्या है? स्वरूप एक्चुअली मिट्टी है, मगर आपका ज्ञान घट का हो रहा है। वास्तव रूप क्या है? मृद। देखिए देखिए दैट इज द मड। देखिए देखो, जैसे कि एक घट और ले लो आप मृद के बीच में, सी मृद्रूप दर्शने सति तद व्यतिरेकेण यथाभूत मृद्रूप। नहीं घटः तद व्यतिरेकेण अस्ति। घट करके मृद से अलग होकर, मिट्टी से अलग एक घट ऐसा है क्या? नहीं है।
पर आपको मिट्टी का ज्ञान हो रहा है या घट का ज्ञान हो रहा है? देखिए, अब आप में भूत दर्शनात्, आप इसका एक्चुअली अंतिम दर्शन देखो, आप ये वास्तव में इसका स्वरूप क्या है। पर मिट्टी का अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? माने आपका जो ज्ञान है आप घट के ऊपर आधार है, पर वो घट ही ठीक गलत है, तो ज्ञान कैसे रहा? और बाह्यार्थ वस्तु अब सच है करके मानकर बैठे हैं, वही सच नहीं है। देख, दैट इज व्हाट इट सेज। सो घटः यथाभूत मृद्रूप दर्शने, वो जो घट जिससे बनी, किससे बनी? मिट्टी से। जब यथाभूत दर्शने, उसका वास्तव रूप जो है, असली तत्व जो है, उसका दर्शन करने से तद व्यतिरेकेण घटः अस्ति, माने मिट्टी से अलग होकर सेपरेटली घट करके कोई वस्तु है क्या? अब बताओ आपका ज्ञान कहाँ है फिर? देखिए, अब चलो फिजिक्स देखते हैं। फिजिक्स के हिसाब में, केमिस्ट्री के हिसाब आप ले लो। अब वास्तव में जो आपको जो वैरायटी दिखाई पड़ रहा है ये सब गलती है, गलत मिथ्या है। क्यों? सब अणु है। अणु माने शक्ति है, तो शक्ति रूप शक्ति तक पहुंच जाओ। एक अणु दूसरे अणु के बीच दो अंतर है, आप बोलते हैं इसका कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ा फर्क है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन नंबर में फर्क है, एटॉमिक वेट में फ़र्क है, एटॉमिक नंबर में फ़र्क है, इसलिए ये एटम, इसको कैल्शियम कहते हैं, उसको कार्बन कहते हैं। बढ़िया है, ठीक है। और इसका भी और अंदर जाओ, भूत दर्शन के तक जाओ, परमार्थ दर्शन तक चले जाओ। माने इसका स्वरूप क्या है, ये किससे बनी? तो शक्ति में आप शक्ति तक वहां जाओ, एनर्जी लेवल तक, वहां पे कोई अंतर है क्या? अंतर ही नहीं। तो अंतर जो दिखाई पड़ रहा है वो सच है क्या, मिथ्या है? अब विज्ञान शास्त्र के अनुसार एवरीथिंग इज एनर्जी, द डिफरेंसेस आर अनरियल। तो आप क्या, आपके में क्या गलत है? आप बाह्य को वस्तु को स्वीकार किया, बाह्य वस्तुओं का सच्चाई सच है उसको भी मानकर बैठा, और ऊपर कहते हो कि बाह्य वस्तु का अस्तित्व जो है वो सच है, वो अस्तित्व के कारण उसी बाह्य वस्तु का अस्तित्व ही उस वस्तु का ज्ञान का कारण बनता है। ये तीसरा तेरा बेवकूफ़ी। हम अब साबित करते हैं बिना वस्तु भी है ज्ञान हो सकता है, फिर उस ज्ञान को क्या कहोगे? पहला बोध दर्शनात् हो गया, आगे बताते हैं। देखिए, जैसे कि अश्वान महिषः तद व्यतिरेकेण अस्ति यथा अश्वान महिषः, जैसे घोड़ा है और बुल है, दे आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, बट मड, जैसे हॉर्स इज डिफरेंट फ्रॉम द बुल, सिमिलरली मड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द पॉट। बट ये घोड़ा अलग है, ये बुल अलग है, दैट ओके। जैसे ये दो फर्क है, वैसे ही मिट्टी और घड़ के बीच में कोई अंतर नहीं है। देखिए, पटोवा तंतु व्यतिरेकेण, अब देखिए क्लॉथ ले लो, क्लॉथ इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द थ्रेड विथ विच इट इज मेड, है ना? है कि नहीं? अच्छा, और थ्रेड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कॉटन। देखिए, पटोवा यथा पटोवा तंतु व्यतिरेकेण तंतवश्च अंशु व्यतिरेकेण इति एवं उत्तरोत्तर भूत दर्शने आशब्द प्रत्यय निरोधात् नैव निमित्तम उपलभमाह इत्यर्थः। आप ऐसा उत्तरोत्तर सक्सेसिवली पूछते जाओ, ये इससे किससे बनी, इसका स्वरूप क्या है, इसके किससे, ये किससे बनी, ये किससे बनी। अब आशब्द माने जहां तक शब्द का आप प्रयोग कर सकते हैं वहां तक जाओ। देखिए, वहां पर एक प्रत्यय निरोधात्, उस शब्द का प्रत्यय निरोध हो जाता है, माने शब्द का प्रयोग निरोध हो जाता है जहां पे, वहां तक जाओ।
वहां पे पहुंचने के बाद यू डोंट फाइंड एनी कॉज, निमित्तम उपलभमाह। देखिए ये उत्तरोत्तर कंटिन्यूसली परस्यू इट सक्सेसिवली, एक के बाद एक के बाद, वहां ये किससे बनी, ये किससे बनी। फिर इसके बाद में जब वी डोंट परस्यू एनीथिंग, एनी एक्सटर्नल कॉज फॉर नॉलेज, सब खत्म हो जाते हैं। मगर आपका ज्ञान हुआ पट का ज्ञान हुआ, वाह, पट है क्या, नहीं तंतु है, तंतु माने थ्रेड, पट माने क्लॉथ। अच्छा, यू गॉट द नॉलेज ऑफ द क्लॉथ, यस सर, क्लॉथ इज रियल, यस सर। अच्छा, ये क्लॉथ किससे बनी, थ्रेड, बट यू गॉट द नॉलेज ऑफ थ्रेड व्हाइल यू आर सीइंग द क्लॉथ, नो। और किसी को नॉलेज ऑफ द थ्रेड आ गया हो तो ये चक्र में क्यों पड़ते हैं, रंग रूप में, रंग में, फैब्रिक में और डिजाइन में, चक्र कोई पड़ता भी नहीं। ओढ़ने के लिए कोई भी कपड़ा चाहिए, ओढ़ो। और आपका ज्ञान हो रहा है पट का, माने क्लॉथ का ज्ञान हो रहा है, कपड़ा का ज्ञान। वास्तव में वो उसका स्वरूप क्या है, थ्रेड। बट थ्रेड का, जब आप पट को देख रहे हैं, एक्चुअली थ्रेड को ही देख रहे हैं कि नहीं, मत थ्रेड का ज्ञान और पट का ज्ञान हो रहा है, वाह। अब वो ज्ञान आप जिस बोलते हैं ये पट ही पट ज्ञान का निमित्त है, अरे बेवकूफ, पट ही नहीं है वहां पे, तो पट ज्ञान कहां रहा। तो बोलते बाह्य वस्तु सच है इसीलिए ज्ञान भी करेक्ट है, ज्ञान का कारण बन गया, कैसे बना बताओ। और दूसरे और उत्तरोत्तर और के जाओ, तंतु देखा, देखा थ्रेड को देखा, देखा क्या दिखाई पड़ रहा है, थ्रेड्स। अच्छा, आपको किसका ज्ञान हो रहा है, थ्रेड का ज्ञान। वो उसका स्वरूप क्या है, कॉटन, तो कॉटन ज्ञान हो रहा है क्या। अच्छा, इससे पहले तंतु ज्ञान हुआ और आपको, आप कहते हैं तंतु ज्ञान में तंतु ज्ञान कारण बना, तंतु सारा तंतु कारण बन गए, बढ़िया है। तंतु है कहाँ वहां पे, तो तंतु ज्ञान में तंतु ज्ञान बना, अरे बेवकूफ, वहां तंतु ज्ञान गलत है, क्यों, तंतु ही वहां नहीं है। उसका स्वरूप क्या है, रुई, तो रुई का ज्ञान हुआ क्या, तो कारण क्या रहा, बाप रे। तो क्या हुआ, इसीलिए प्रभु आपका विचार जो है ये सही नहीं है। तो तंतवा न अंश व्यतिरेकेण इति आशब्द प्रत्यय निरोधात नैव निमित्त उपलभमाह। आखिर में यू विल नॉट फाइंड एनी एक्सटर्नल कॉज एट ऑल दैट नॉलेज के लिए, एवरीथिंग डिसअपियर्स। When you are seeing, when you are getting the knowledge of the cloth, though you are getting the knowledge of the cloth, but actually cloth is not there, there is thread. But you have got the false knowledge that it is a cloth. When you are seeing the thread, you are getting the knowledge of the thread, but actually it is not the thread, it is cotton, but you are not getting the knowledge of cotton. So you successively, you keep on inquiring. What you mentioned that the existence of the object is the cause for the knowledge of the particular object, that logic is incorrect because the object itself is not real. ठीक है, तो therefore अब क्या है, even though mud and the pot are same, आपका ज्ञान में फर्क हुआ कि नहीं, देखिए हुआ कि नहीं। इसका मतलब क्या है, वस्तु तो एक ही है, एक ही वस्तु का ज्ञान आपको अलग अलग ढंग से हो रहा है। ये कैसे बनता है,
है सोना, मगर आपको अलग अलग ज्ञान हो रहा है। तो ये अलग अलग होना ये बड़ी मिथ्या है ये। अथवा आचार्य सेस अगेन, अथवा और निमित्तम उपलब्ध इत्यर्थः, अथवा हाँ दूसरी बात है, अथवा अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते रज्ज्वादौ यः सर्पादेः इत्यर्थः। और दूसरी उदाहरण दे रहे, और द फ्रेज में भी अभूत दर्शनात् ले लो, वहाँ पे टेक्स्ट बुक में क्या है श्लोक में, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते, वहाँ पे अवग्रह लगा दिया, वहाँ पे अभूत दर्शन हो गया है ना। अभूत दर्शन ले लो, उसका प्रयोग करते हैं, अभूत दर्शनात्, मीनिंग एंड नॉट भूत दर्शनात्, इन विच केस द मीनिंग इज अभूत दर्शनात् बन जाएगा। अभूत दर्शनात् मीन्स ऑन अकाउंट ऑफ फाइंडिंग द एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट टू बी अनरियल, दैट इज द मीनिंग अभूत दर्शन। सो बाह्यार्थस्य अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वम् इष्यते। इन दैट केस क्या होता है अभी, इफ यू टेक दैट अभूत दर्शन एज अ मीनिंग, then the meaning is on account of the external object, when you find out that external object is unreal, ये बनेगा ऐसा। when you found that external object is unreal, अभूत दर्शनात्, वस्तु ही नहीं है तब जब हमें अनिमित्तत्वम् इष्यते, then in that case वस्तु itself is not there, meaning the existence of the object also itself is questionable। आप मैजिक देख रहे हैं, मैजिक का ज्ञान हो रहा है, बट एक्चुअली जो है वो वास्तव में उसका नास्तिकत्व में, और जो नहीं है उसका आस्तिकत्व के रूप में दिखाने वाला कौन है, मैजिशियन है। ज्ञान हो रहा है आपको, आपके आंखों के सामने हो रहा है ज्ञान, मगर वास्तव में वो नहीं है वहां पे। तो ये जरूरी नहीं है, पहले साबित क्या कर दिया, ये जरूरी नहीं है। ज्ञान हुआ इसका मतलब बाह्यार्थ जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। बिना बाह्यार्थ भी हो रहा है, आगे उदाहरण देंगे। जैसे आप सांप को देख लिया, वहां पे सांप बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है, तो भी ज्ञान हो रहा है। तो आपने क्या कहा, बाह्य वस्तु ही निमित्त बना ज्ञान में, बाह्य वस्तु नहीं है उस वस्तु का ज्ञान नहीं होता। और बाह्य वस्तु अनेक है, हर वस्तु सच है, इसीलिए ज्ञान में फर्क है। यह आपका सिद्धांत का कोई बेसिस नहीं है। समझ में आ रही है कि नहीं? आप देखिए हाउ मच वी आर फॉल्स। जो दिखता है वो नहीं है, जो सुनते वो नहीं है। हाँ, तो सारा व्यवहार इज बेस्ड ऑन फॉल्स नॉलेज। आप अपने आप को शरीर मानकर बैठते हैं, ये दुनिया सच है करके मानते हैं, सुख दुख अनुभव सच है मानते हैं, जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान भी सच करके मानते हैं। माने सारे के सारे झूठा जगत में डूब गए। एवरीथिंग इज फॉल्स। जब मृत्यु नहीं है, न जन्म नहीं है, न बंधन नहीं है, न हम जिसको पकड़ते हैं, जिस सिद्धांत को पकड़ते हैं, जिस प्रत्यय को पकड़ते हैं, बाप रे, सब झूठा जगत है, इसमें एक भी सच नहीं है। अब मांडुक्य तक फिर पहुंच गए तो फिर कोई है ही नहीं बोलते हैं, क्योंकि आप वस्तु का ज्ञान बोल रहे तो त्रिपुटी ही नहीं है। अरे भैया सब कुछ नहीं है तो मजा मजा कहां से आएगा?
कोई रसगुल्ला एंजॉय कर रहे हैं, उसके बाद जाके बोलते हैं रसगुल्ला मिथ्या है, डांटेगा कि नहीं? वो मस्ती में खा रहे बेचारा, मजा उठा रहा, बोल रहे मजा मजा है, चाट रहे हर उंगली, एक एक उंगली बार बार, रस में डूब कर भी चाट रहे जानबूझ के। उससे जाके पूछे कि आप जो खा रहे हैं वो गलत है। क्या करें? बट दैट इज द ट्रूथ। अथवा अभूत दर्शनात्। सो इसीलिए जैसे कि दैट मीन्स व्हाट, बाह्यार्थवादी सेज, देखिए इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन नॉलेज दैट टेक प्लेस। देखिए नॉलेज में अलग अलग नॉलेज हो रहा है, इसीलिए हम बाह्य अनेक वस्तु है, ये ऐसा कहते हैं बाह्यार्थवादी। नाउ इसका आंसर क्या है? भैया इवन विदाउट एनी डिफरेंस इन द ऑब्जेक्ट्स, वस्तु में फर्क नहीं है, वस्तुओं में, दो वस्तुओं के बीच में फर्क नहीं है, फिर भी ज्ञान अनेक सा हो रहा है। अरे मिट्टी ही है, मिट्टी ही घट का ज्ञान हो रहा है, और मिट्टी से बनी हुई सारी चीज जितने भी हैं सबका ज्ञान हो रहा है। सोना एक है, पर सोने जितने भी आभूषण आभरण बने, एक एक आभरण का एक एक नाम, अलग अलग ज्ञान हो रहा है। तो आपने क्या कहा? वस्तु में फर्क है इसलिए अलग अलग ज्ञान हो रहा है। हम कहते हैं वस्तु में फर्क नहीं है तो भी अलग अलग ज्ञान हो सकता है। जैसे कि सर्प और रोप, कोई फर्क है क्या? एनी डिफरेंस बिटवीन रोप एंड द स्नेक? नो, स्टिल द नॉलेज ऑफ स्नेक इज देयर। सो आचार्य जैसे अथवा, तो व्हाट इज दैट नाउ? देयरफॉर आचार्य सेज अथवा अभूत दर्शनात् बाह्यार्थस्य अनिमित्तत्वस्य से रज्ज्वादो यह सर्पादेह इत्यर्थः। सो लेके सर्प में ये देखते हैं, दैट्स हाउ इट इज वी आर सीन। तो इसके बाद आचार्य जी कहते हैं आगे, अब यहां पर थोड़ा ध्यान देकर सुनना। देखिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इसका मतलब क्या है? वी कैन नॉट एक्सेप्ट दैट द नॉलेज इज करेक्ट जस्ट बिकॉज एन ऑब्जेक्ट इज सीन। ऑब्जेक्ट वस्तु दिखाई दिया, वस्तु दिखाने से दिखा दिया, और इसीलिए उसका ज्ञान जो है सच है, ये ऐसा मानना गलत है, क्योंकि वस्तु का अस्तित्व ही गलत है। और तुम्हारा क्या कहना है? वस्तु है तभी ज्ञान होगा, ये गलत है। बिना वस्तु के अस्तित्व भी ज्ञान हो सकता है। तो वस्तु, जिस एंटायर सृष्टि इज नॉट देयर, फिर भी ज्ञान हो रहा है। व्यवहार करते हैं, इसीलिए देयरफॉर अब यहां पे देखना, वो क्या कहते हैं बाह्यार्थवादी? ज्ञान भेद का कारण विषय भेद है, उनका कहना। बाह्यार्थवादी क्या कहते हैं? ज्ञान भेद का कारण क्या है? विषय भेद। अच्छा, उसका जवाब क्या दिया है? बिना विषय भेद के भी ज्ञान भेद है। जवाब दिया कि नहीं? बिना विषय भेद ज्ञान भेद हो सकता है। विषय क्या है? सोना, अनेक ज्ञान हो रहा है। विषय क्या है? मिट्टी, और घड़ का ज्ञान, घड़ से बनी हुई जितने भी चीज़ें हैं, एक एक अलग अलग करके ज्ञान हो रहा है। तो आपने क्या कहा?
विषय भेद है तो ज्ञान हुआ, हम कहते हैं विषय भेद नहीं है तो ज्ञान अलग हो सकता है। देखिए, और इसके बाद जैसे कि ज्ञान भेद है, जैसे रस्सी आदि अधिष्ठान में, रस्सी है उसमें अधिष्ठान है, वो उसमें आरोपित सर्प है, सर्प को देख सकते हैं हम, सर्प का ज्ञान भी हो रहा है, उसके पीछे रज्जु भी है। तो इसीलिए दिखने मात्र से ही हम ये नहीं कह सकते कि वो वस्तु उस ज्ञान का, उस वस्तु का ही ज्ञान का आलंबन है, ये नहीं कह सकते, जरूरी नहीं है ये जरूरी नहीं है। अब विज्ञानवादी क्या कहते हैं, ज्ञान ज्ञेयाकार, और बाह्यादवादी कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान में आकार बनता है। विज्ञानवादी से ज्ञान ज्ञेयकार, वृत्ति व्याप्ति में वो ज्ञान कहते हैं, वो ज्ञान है, वो बाह्य में जाएगा। जैसा वस्तु है वो सच है या झूठा है वो अलग बात है, जो वस्तु आपके सामने दिखाई पड़ रहा है उस वस्तु के रूप धारण करके वो ज्ञान, विषय, व्हाट इज कॉल्ड वृत्ति व्याप्ति, फल व्याप्ति, दो चीज़ें हैं। वृत्ति व्याप्ति ज्ञान बाहर जाकर उस वस्तु का रूप में परिणत होकर फिर अंतःकरण में प्रवेश करने के बाद उस वस्तु का जो फोटोग्राफी जैसे अंदर लेने के बाद, तो वो क्या है, हमारा ज्ञान बाहर जाकर वस्तु के रूप में बदलकर उसका शेप्ड बाय दैट वस्तु फिर अंदर प्रवेश करेंगे, तब वस्तु का ज्ञान होता है। तो ज्ञान ज्ञेय आकार, ज्ञेय माने वस्तु, बाह्य वस्तु, ये कौन कहते हैं, विज्ञानवादी। ज्ञान ज्ञेय आकार, चाहे वो ज्ञेय वस्तु सच हो या अलग गलत हो, मगर जो दिखाई पड़ रहा है उसका ज्ञान होता है। तो बड़ा इसमें ये, इसका ये मतलब नहीं कि ज्ञान जो वस्तु सच है ये गलत है। वस्तु सच भी हो सकता है, ना सच भी हो सकता है, तो भी ज्ञान हो सकता है, क्योंकि ज्ञान ही बाहर जाकर विषयाकृति लेकर, आकृति लेकर अंदर प्रवेश करता है। बाह्यादवादी कहते हैं ज्ञेय से ज्ञान में आकार बनता है, नहीं हमारा ज्ञान है ज्ञेय के आधार है, हम बोलते हैं ऐसा नहीं। तो वेदांत क्या कहते हैं, अरे बाबा न ज्ञान है न ज्ञेय है, क्योंकि दोनों सच्चे नहीं। वेदांति कहते बाबा ये ज्ञान है न ज्ञेय है। आप जिसको ज्ञातृ पकड़ के बैठे वो तो भी अहंकार है। तो ज्ञान ज्ञेय ज्ञातृ त्रिपुटी जो है ये तीनों के तीनों मिथ्या है। और ज्ञान ज्ञेय क्यों गलत है, अरे भैया ये दोनों एक दूसरे को आश्रित है। ज्ञान के ऊपर ज्ञेय आधार है, ज्ञेय के ऊपर अज्ञान। तो जब आश्रित हो गया तो स्वतंत्रता नहीं है इसमें। जो स्वतंत्रता नहीं है माने वो एक नहीं है, आश्रित हो गया, इसका खंडन हो गया। जो खंडित किया हुआ जो भी वस्तु है वो तो ब्रह्म नहीं है। अखंड ज्ञान कहते हैं, खंड ज्ञान नहीं है। शुद्ध ज्ञान कहते हैं, वस्तु ज्ञान नहीं है, विषय ज्ञान नहीं है, बाह्य ज्ञान नहीं है। तो भ्रांति दर्शन विषयत्वाच्च निमित्तस्य अनिमित्तत्वं भवेत् तदभावे अभावात्। मीनिंग इसका मतलब क्या है, भ्रांति दर्शन विषयत्वाच्च, भ्रांति के कारण निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, बिकॉज द कंटेंट आपको जो दिखाई दे पड़ रहा है उसमें भी दैट्स एरोनियस परसेप्शन, भ्रांति दर्शन है आपके। जहां पर भ्रांति दर्शन हो रहा है आप वो निमित्त एक्चुअली निमित्त नहीं है। आप सांप देखा, सांप क्या है, सांप भ्रांति दर्शन हुआ। अच्छा तो सांप भ्रांति दर्शन है, आपका क्या हुआ, सर्प का ज्ञान हुआ। आप देखिए भ्रांति सर्प, सर्प का ज्ञान आपको हुआ, भ्रांति सर्प का ज्ञान हुआ। वो सर्प तो भ्रांति है मगर आपको सर्प का ज्ञान हो गया, और उसमें सर्प का ज्ञान में निमित्त क्या है, अभी भ्रांति सर्प।
देखिए, तो वो निमित्त निमित्त नहीं बना, उस झूठा निमित्त है ना, दैट इज नॉट द एक्चुअल कॉज, नो, इट इज नॉट एग्जिस्टिंग एट ऑल। आचार्य के निमित्तस्य अनिमित्तत्वम भवेत, निमित्तस्य अनिमित्तत्वम, वो तो इट इज नॉट ए कॉज एट ऑल। इन एरोनियस नॉलेज में, इन गेनिंग एरोनियस नॉलेज, आप जिसको कॉज कारण कहते हैं वो तो वास्तव में कारण ही नहीं है। देखिए, तद अभावे अभावात, क्योंकि वो वस्तु नहीं है तो ज्ञान भी नहीं होगा। वो एरर रिमूव्ड, भ्रांति रिमूव्ड, तो ज्ञान कहां रहा? जो दिखाई पड़ रहा है सांप, उसको निकाल दिया, हटा दिया, तो सांप का सर्प का ज्ञान कैसे होता है? वो भ्रांति वस्तु है, ये भ्रांति निमित्त है, तो भ्रांति निमित्त है माने निमित्त ही नहीं, क्योंकि जो सांप दिखाई पड़ रहा है दैट इज एक्चुअली नॉट द स्नेक। नहीं सुषुप्त समाहित मुक्तानां भ्रांति दर्शन अभाव आत्म व्यतिरिक्ता बाह्यार्थ उपलभ्यते फॉर दोज पीपल हु गो टू डीप स्लीप। सुषुप्ति, समाहित, दोज हु आर इन समाधि, मुक्तानां दोज हु आर लिबरेटेड, उनके लिए देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ भ्रांति दर्शन एट ऑल। नींद में क्या भ्रांति है? द्वैत मिट गया, टेम्पररी। समाधि में जो बैठ गया, काल से परे वो चला गया वो समाधि में, सविकल्प निर्विकल्प समाधि में, तो वहां पे क्या है? सब है ही नहीं। मुक्ति हो गया, उसको भी नहीं है, कुछ भी द्वैत नहीं है। Where is no erroneous perception, when there is no erroneous perception, भ्रांति दर्शन, वहां पे there is no knowledge of any external object। देखिए, अभी नो एवरीथिंग इज भ्रांति, ऐसा समझ लिया, भ्रांति को मिटा दिया, तो भ्रांति ज्ञान भी चला गया, सब भ्रांति, सारे के सारे सृष्टि जो जितने भी है द्वैत सब मिट गया, तो उसका ज्ञान भी चला गया। अब क्या गया? ज्ञान स्वरूप रह जाता है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म यो वेद निहितम गुहायाम निहितोस्पजंतो। परमे व्योमन, तैत्तिरीय उपनिषद। देखिए, इसीलिए नहीं उन्मत्त अवगतम वस्तु अनुन्मत्त ही अपि तथाभूतम गम्यते। दो पागल जो देख रहा है, मैडमैन को जो दिखाई पड़ रहा है, जो स्वस्थ है उसको तो दिखाई नहीं पड़ता। उन्मत्त अवगतम वस्तु एक वस्तु है, उन्मत्त अवगतम वस्तु, न अनुन्मत्त ही अपि तथाभूतम गम्यते। जैसे वो देखता है वैसे वो नहीं देखता। अनुन्मत्त माने जो पागल नहीं है वो ऐसा नहीं देखता जैसे पागल देखता है। ये तेना विद ऑल दिस आर्ग्यूमेंट्स नाउ द्वय दर्शनम संक्लेश उपलब्धिश्च प्रयुक्ता। विथ ऑल दिस इज आर्ग्यूमेंट्स आर डिमोलिश्ड। All the arguments are demolished. Which are arguments? That are arguments based on the duality, perception of duality and experience of pain. संक्लेशा, experience of pain हो रहा है इसीलिए वस्तु सच है, अलग अलग ज्ञान हो रहा है इसीलिए वस्तु सच है। ये सब arguments are demolished with this reasoning. ठीक है? तो विज्ञानवादी लड़कर बाह्यवादी को दबा दिया। अब वेदांती आके दोनों को हटाटा बहा। अब दोनों आपस में लड़के मरे ना, हम ही हैं। अब इतना चर्चा हो रहा है कि ये जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं वो अभी वास्तव में जो जिसके बारे में उसके ऊपर सच्चाई, अस्तित्व और इसका अजातिवाद ही स्थापित हो जाएगा। अस्तित्व नहीं हो सकता है। दिखाई पड़ रहा है, दिखाई सकता है, उसमें क्या है? अनुभव हो रहा है, अनुभव भी हो सकता है। व्यवहार हो रहा है, वो भी हो सकता है। सपने में सब कुछ हो रहा है मगर सपने में कुछ भी गलत सही नहीं है।
सपने में खा रहे, पी रहे, कूद रहे, लड़ रहे, सो रहे, ध्यान कर रहे, पुण्य क्षेत्र का ये दर्शन कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं सपने में भी, सारा दुनिया करेक्ट है। हाँ, उन्मत्त अवस्था में भी अपने आप देखते रहते हैं। वह जैसे उन्मत्त देखता है उन्मत्त अवस्था में, अनुन्मत्त तो नहीं देखता है। वैसे तो हम पागल है इसलिए देख रहे हैं सबको। इसीलिए क्या करना है, द्वैत का अनुभव हो रहा है तो होने दो, ठीक है। हो रहा है इसका मतलब सच है, ये गलत है। लाइक जस्ट फॉर एग्जाम्पल मिराज, गंधर्व नगर, सूर्योदय, अनुभव हो रहा है, सच नहीं है। व्यवहार भी हो सकता है, व्यवहार जैसे सपने में व्यवहार भी हो रहा है। सपने में सपने की पानी, सपने की पानी और सपने के प्यास, और वो ड्रीम वाटर से ड्रीम प्यास बुझा दिया आप, सब ठीक है। मगर होल सपना से बाहर आकर देखा, न पानी सच है, न सपना पुरुष सच है, न स्वप्न प्यास सच है, स्वप्न पीना भी सच नहीं है, कुछ भी नहीं है। पर तब व्यवहार सब कुछ ठीक ठाक चला। व्यवहार, स्वप्न का प्रारब्ध भी गलत है, सच नहीं है, स्वप्न का पुरुषार्थ भी सच नहीं है। और ये सब सच स्वप्न है, कब पता लग रहा है? स्वप्न से बाहर आने के बाद ही। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम सद्गुरुनाथ महाराज की जय।